This is NDTV and you are watching NDTV Prime. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. दिल्ली के दो कड़क लौंडे के साथ Hello and welcome to the Rising Stars of Comedy RJ Special. I'm Akriti Tyagi. His is the voice that greets you in the morning, on your way to work, in class, at home, or in a traffic jam. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के मॉर्निंग नंबर 1 पर मैं रौनक और मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं इस वक्त रेडियो पे हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं टीवी पर हूँ। यू आर रॉन्ग। कैसे टीवी पे हो सकते हो? रॉन्ग नहीं, अपने राइट में देख, मैं टीवी पे हूँ। कहाँ से आए टीवी वाले? शट अप! Please welcome RJ Ronak. क्योंकि Thank you so much for being a part of the show, Ronak. Most welcome. Thank you very much. So, we're going to start by knowing who RJ Ronak is, and then I'm going to ask you questions. आरजे रौनक इज अ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा और फेमस पेशेंट. ओके बिकॉज समटाइम्स आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि कौन है एग्जैक्टली रौनक. Few people know me more than Ronak. They call me Bahua. So sometimes I feel little because my family members, my father, my sister, my brother, my wife, Okay. especially because sorry, I'm married. So okay. So someone asked my wife, "You stay with Bahua?" So she felt really embarrassed. कि यार क्या? And she came and that person asked me, "तुम बहुआ के साथ रहती हो? वो तुम्हारा husband है." मैंने बोला उसकी वजह से ही पैसा आ रहा है, रोटी आ रही है, सो डोंट फील एम्बैरेस्ड. सो बहुआ है, सुकुमार अविश्वास है, देन रौनक है, देन वन रौनक इज ऑन एयर पर्सनालिटी रौनक, ऑफ एयर रौनक इज समबडी डिफरेंट. सो Okay. How did Ronak come about being an RJ? it just happened actually because I was in Mumbai at that time. Just was preparing for too many competitive exams. I went for CAT twice. I could not crack that CAT. Then other management entrance examinations. Indian military का जो था examination वो भी. Then somehow this radio thing happened because private radio just it was just I think 2-3 years old at that time. So मेरे को लगा कि probably I can go and try a bit in radio because ज़्यादा कुछ इतना technical है नहीं. And the best part is you're not visible. So I don't have to prepare that much. So I was trying in a couple of private radio stations, but of course they used to look for and they are still looking for experienced people, not freshers. Sure. Then I started with All India Radio at that time. I went for an audition, clear हो गया. Then एक छोटा सा training and then I started with All India Radio. Okay. I spent around 3 years in All India Radio. उसके बाद simultaneously I completed my MBA. Then after 3.5 years it got really clear within myself कि आप full time radio कर सकते हैं. And simultaneously I was trying in couple of private channels. I approached Red FM, gave 9 interviews. Then they called me in 10th and they said ठीक है, if you want to go to Nagpur or Pune or some other cities because Mumbai was full at that time. I said मेरे को थोड़ा हिंदी और उर्दू ठीक करना है. Can you shift me to Lucknow? They said okay. They Directly from were Bombay to Lucknow. Lucknow. Yeah, it was very shocking for many people कि यार पब्लिक मुंबई जाना चाहती है और तू पीछे आ गया. But I thought कि रेडियो इज अ फील्ड जहाँ पे मोनोटनी बहुत जल्दी आ सकती है because 5 days or 6 days a week you're working continuously for 4 and 5 hours. आपके जोक्स कब खत्म हो जाएंगे, आपके पास पंचेस नहीं होंगे, आपके पास आइडियाज नहीं होंगे, देन हाउ विल यू एग्जीक्यूट. तो वो चीज़ मेरे को पहले लगती थी कि ऐसा हो सकता है. तो इसलिए आई थॉट कि इट्स बेटर टू स्टार्ट बिकॉज एज अ बिगिनर इन अ प्राइवेट इन अ कमर्शियल रेडियो स्टेशन यू शुड स्टार्ट विद अ स्मॉलर मार्केट सो दैट एक थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है. सो आप रणजी ट्रॉफी थोड़ा अच्छे से खेल लो. सो जब आप मेन टीम में खेलने आते हो तो थोड़ा सा अच्छा मंजे हुए होते हो. हाँ मंजे हुए होते हो. जी. So it clicked actually, it worked. So I went and joined Red FM Lucknow. Okay. I worked there for around 14 to 15 odd months. Then after that they transferred me to Delhi. Okay. In 2010 October I came in Delhi. That's nice. But
background MBA, and I don't think you must have started with a thought process of coming into RJing. हाँ बिल्कुल. How did the family take it? बेटा कितना कमा लोगे यार, खाने भर का मिल जाएगा या हमारे सर पे बैठोगे जिंदगी भर. गलती से अगर शादी कर ली तो बीवी को भी हमको ही पालना पड़ेगा, और उसके बाद अगर गलती से बच्चे हो गए और जुड़वा हो गए और 2 बार हो गए तो इस बूढ़े बाप के कंधे पे कितनी जिम्मेदारी है. तो मैंने बोला नहीं, रेडियो में ठीक ठाक सैलरी मिलती है. देन आई शोड हिम मेरा रिटेल का तो सैलरी स्लिप एंड रेडियो का सैलरी स्लिप. 5,000 का डिफरेंस था, रेडियो में 5,000 ज़्यादा था. ओह गुड. So he was satisfied. हाँ बोला अभी कर ले बेटा, तो कर ले. चलो, बोलना है at ना least, तेरे को, गाने आएंगे बीच में बोलना है ना, मतलब बस इतना ही करना है. Taking from that thought, forward, देख के लगता है बहुत आसान है. सब सोचते हैं बोलना ही तो है. 4 घंटे बैठे हुए करके आ रहा है, बोल रहा है, and he's famous for it. Absolutely. But how difficult is it? It's not difficult, but it's very challenging. Okay. Because when you say difficult, तो बहुत ज़्यादा आप interpret कर लोगे उसको अलग तरीके से. It's very challenging and very interesting also at the same time. So आप, because you're talking and you're thinking and you're doing something else. Sure. Because if you just see, I'll show you the studios. Obviously, you'll capture some pictures and videos from the studios. वो ऐसा लगता है जैसे एक नासा एक मिनी नासा का एक स्टूडियो है, आप समझ लो कि कुछ तो लॉन्च होने वाला है. Something is about to happen. बहुत सारा छोटा-छोटा लाइट्स है, फेडर्स है, देन आपका हेडफोन है, देन माइक्रोफोन है, फिर आपको जो सॉन्ग बजाना है उसका, एड्स बजाना है उसका. सो देयर आर मल्टीपल बटन्स, और वो सारे को मैनेज करना है. देन और साथ एट में द बोलना सेम भी टाइम है. आपको बोलना भी है, और एट द सेम टाइम आपको आगे क्या आने वाला है आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है. एंड साइमल्टेनियसली अगर कुछ टीवी पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट जीतने वाला है और धोनी ने छक्का मार दिया, बट यू टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, सो आपको वो भी बोलना है. सो वो जो मल्टीटास्किंग है ना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. इसलिए अगर खाली बोलना होता है एंड बाकी कोई और भी कर रहा है, सो बिकॉज एवरीथिंग व्हाट आई मेंशन्ड, ये सारा कुछ आपको खुद ही मैनेज करना है. आपको फेडर भी अप करना है, फेडर डाउन करना है, माइक ऑफ करना है, माइक ऑन करना है, म्यूजिक प्ले करना है, म्यूजिक ऑफ करना है, ऐड प्ले करना है, ऐड ऑफ करना है, हेडफोन रखना है, कॉल्स पिक करनी है, कॉल्स को रिकॉर्ड करना है, उसको एडिट करना है. 2 मिनट है आपके पास, उस एडिट को प्ले करना है. यू कांट टेक कॉलर्स लाइव बिकॉज वो गाली दे देंगे. Of course. मेरे को नहीं, पीएम या सीएम को मेरे को तो देते ही है. सो दैट शुड नॉट गो ऑन है. सो वो भी देखना है. एंड करंट अफेयर्स जो हो रहा है, स्पेशली इन द मॉर्निंग शोज, यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल द स्टफ कि वो क्या चल रहा है. अभी क्रिकेट भी चालू हो गया, 9:30 मैच चालू हो जाता है. सो शो टाइमिंग से तो आपको स्कोर भी देखते रहना है, आपको ट्रैफिक भी देखते रहना है. देन अगर कोई इंसिडेंस हो गया तो उसको भी कवर करना है. सो देयर आर टू मेनी थिंग्स. अनलेस एंड अनटिल यू आर सॉर्टेड, थोड़ा सा सटल, वो चीज़ फिर आप बहुत सारा चीज़ मिस कर जाओगे. Of course. एंड देयर विल बी टू मेनी goof ups also. So Talking about goof ups, have you ever made a goof up on air? Like the big one. बिग वन तो नहीं हुआ है अभी तक. अच्छा. होपफुली अभी तक तो नहीं हुआ है. बट हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत सारी हुई हैं. goof up तो सच लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय रेडियो विद रेड एफएम, बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे होते थे जब मैं माइक ऑन करना भूल जाता था. सो वी हैव एन अंडरले व्हिच इज ऑन. Okay. सो आप व्हेन यू आर अबाउट टू गो ऑन एयर, आपके पीछे एक अंडरले आता है, यू कैन से म्यूजिकल बेड आता है, या फिर एक छोटा सा म्यूजिक आता है जिसके Show ऊपर music bed. हाँ शो म्यूजिक, आप उसके ऊपर बात कर रहे हो, तो वो म्यूजिक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है. आप ऑन करो ना करो, इट विल बी ऑन ऑटोमेटिकली. अच्छा. बट यू हैव टू मेक योर माइक ऑन मैन्युअली. सो वो मैं भूल जाता था. सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, मैं माइक ऑन नहीं किया, अंडरले चल रहा है, And you started. एंड आई स्टार्टेड. हाय सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं रौनक. मंडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. और आज सुबह हम लोग बात करने वाले हैं हेडलाइंस की, जो इस वक्त स्पेशली एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, पॉलिटिक्स. अब इसमें क्या हुआ, 30 सेकंड्स जा चुका है. पर्सन हु इज सिटिंग आउटसाइड इज लिसनिंग कि यार ये क्या जा रहा है, खाली बैठ जा रहा है, नोबडी इज टॉकिंग. देन ही सडनली केम इन, माइक तो ऑन कर ले, धाड़. एंड आई स्टार्टेड इमीडिएटली सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम रौनक के साथ. सो मैं बोला भाई माइक ऑन नहीं कर रहा था. बोला एंड ही केम एंड शाउटेड, प्रोड्यूसर, माय प्रोड्यूसर, शो प्रोड्यूसर, भाई माइक तो ऑन कर ले यार, माइक ऑन ही नहीं करता. सुपर हिट्स 90. इमीडिएटली आई से सुपर हिट्स 93.5 रेड Presence of mind. एफएम. मैं बोला यार ये बच गया. सो ये बहुत बार हुआ. और फिर उसके बाद देन धीरे धीरे करेक्ट हो गए हो. Okay. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं. एक तो मेन तो ये था. हेलो हेलो, कौन? शिखा?
मैं तुमको बोला था मेरी गलती नहीं है शिखा। तुम बात तो करो कम से कम। शिखा प्लीज टॉक। शिखा कौन है? तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तेरी बहू। And then it started.